Hey guys, welcome back to the episode number 20th of None by Nehal, and I hope you're all doing great and in a healthy lifestyle. Okay, so everything is set. Okay, so first of all, I'm really sorry I couldn't upload my video for about a month, and it's because of many things going on back to back, basically my exams. So I didn't knew, and unexpectedly it came up, so and I had to prepare for that. तो होता है ना कि अपने पैशन को थोड़ा साइड में रखना पड़ा मुझे. So sorry for that. So welcome back, and I hope you are doing great. So this one is the episode number 20th, and I hope आपने पीछे के सारे एपिसोड्स सुने हैं and you are liking it. एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी सारी प्लेलिस्ट को वॉच करिए एंड सारे एपिसोड्स वॉच करिए एंड then you will come to this episode. I'll be more happier, and whatever will be your thoughts and views about the content I make, please do let me know. Please do comment and like and subscribe to my channel. And those who have already done, thank you so much from the bottom of my heart for believing in me, for मुझ में विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो एक होता है ना 0 सब्सक्राइबर से 9 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जितना मैं इनपुट दे रही हूँ आई डोंट इवन डिजर्व दिस मच लव फ्रॉम योर साइड, बट आई एम गेटिंग इट. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट. Thank you, and thank you God for everything. So this episode is I would say based on relationship. If I'll convey it to you according to my perspective, अपने perspective से बताऊँ तो ये episode ना एक ऐसे पर्सन को ना पढ़ना चाहिए जो एक रिलेशनशिप्स में सफ़र कर रहा है या उसे पता नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं. स्टार्ट ही हुआ है, अभी एज हुई है रिलेशनशिप्स में आने की एंड ऑल दोज थिंग्स. सो जो भी है, ऐसा एज मैटर नहीं करता है कि एक परफेक्ट एज नहीं होती है कि आप रिलेशनशिप में सही दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग है नहीं है. इवन एट द एज ऑफ 40, at the age of 45, people are not able to understand what the other person want. कि दूसरे इंसान को चाहिए क्या, वो इंसान को पता ही नहीं है दूसरे को. And somewhere they suffer and they get exhausted, and somewhere we always see हर दूसरा relationship is like on breakup, on verge of divorce and all those things. But जो एक फीलिंग होती है, जो एक बेस होता है, हम जो एक फाउंडेशन होता है, वो हम बिल्ड ही नहीं करते हैं. एंड वी वांट द हाई टॉप नॉच काइंड ऑफ experience. I would say, buddy, if you want that, you need to build layer by layer, है ना, जो कि इस एपिसोड में मुझे बहुत देखने को मिला. इन द केस ऑफ एमिट एंड एवरी, सो before their marriage only they are into intimacy and that love, and everything is happening without knowing. Unknowingly सब कुछ हो रहा है. It's not happening because they want it. It's happening because it's the nature of our body, right? If you like someone, if your soul recognize the other person, you cannot deny to it. And you can deny it from your mouth, right? You can say that no, I don't feel that this is right, and I don't know whether this will work, or I don't know whether मैं उतना दे पाऊँगा या मैं उतना दे पाऊँगी जितना ये पर्सन डिजर्व करता है. आई डोंट नो.
what we fail in is in giving. अगर आप वो सर्व नहीं कर सकते हो ना, you should not even think of getting it in return. समझ रहे हो? अगर आप वो दे नहीं सकते हो ना किसी को, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सामने से मिलेगा. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपेक्ट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए. इफ़ यू आर इनटू लव काइंड ऑफ अ थिंग, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, यू शुड just be the giver. And trust me, once you'll be the giver now, everything will fall on its place. हर एक चीज़ अपनी जगह पे फिट हो जाएगी. ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो है ना इन सब फीलिंग्स को नकार दे या इन फीलिंग्स को समझे ना, है ना. सो आई होप यू ऑल इन दिस नोट विद मी. तो यहाँ पर क्या होता है, दे बोथ आर इन दैट the intimate phase which I would not be comfortable in demonstrating to you. So what I really wanna say is ये जो भी मैंने explain किया, I think I'm able to express it more clearly, right? ये चीज़ क्या है वो सब. तो they are in that intimate phase and they slept, right? After that the morning starts. तो जो एवरी है वो उठती हैं. and in all this thing every plays a very crucial role. Why? Because ना उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है. शी इज़ into that thing कि अच्छा भी लग रहा है, I cannot live without this thing also. मेरी बॉन्ड भी बन रही है, I'm getting emotional also, I think I'm in love also, but I don't know क्यों, क्योंकि that thing is not being clear. वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है दोनों के बीच में. That's why this misunderstanding is happening, whether this is actually love or is just the attraction being done between two of them. तो ये क्या होता है, they both again get close in the morning also. So फ़ोन बजता है. फ़ोन ये सोचते हैं कि किसका है, तुम्हारा है कि मेरा है. they don't even have that much time to see whose phone is ringing. So जब दोबारा बजता है, then they see and the call is of Max from the restaurant. तो फ़ोन होता है एवरी का, तो और एमिट रिसीव करता है. सो ही सेज कि मैक्स बेटर बी गुड. तो इज़ लाइक कि कुछ अच्छा ही बोलना, बुरा मत बोलना. तो इज़ लाइक कि ओके सो यू डिडंट सो माय टेक्स्ट. एवरी को बोलता है कि आपने ये टेक्स्ट नहीं पढ़े. तो शी सेज कि नहीं, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके. तो वो कहते हैं कि जो कहते हैं कि ना जो सप्लाई का जो ट्रक था, इट मेट विद एन एक्सीडेंट. सो उसमें जो एग्स वगैरह थे वो मतलब कि ख़राब हो गए हैं. एंड जो टूरिस्ट हैं दे आर हंग्री एंड दे हैव जस्ट वॉक्ड इन द रेस्टोरेंट. तो क्या किया जाए, एंड इवन फोक्स वगैरह भी नहीं है. आई डोंट नो where the whole folks have gone, whether into garbage or they've been hidden or what. So Max is picked up like in a chaotic situation. तो एवरी भी हो जाती है एकदम से ना, जो ब्रेकआउट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है एकदम से, ये हो रहा है. तो मीनवाइल Amit भी tries to get in that what has happened, everything is good or not. तो यही सब बात का चल रहा होता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. देन मैक्स से इसकी मैंने ना चक को भी बात करते हुए सुना था कीकू से. एंड इफ़ यू रिमेंबर, कीकू इज़ द रेस्टोरेंट ओनर जिसने अभी भी अपना रेस्टोरेंट फुल्ली तरह से एवरी को नहीं दिया है. एंड द चक इज़ द वन हु ऑलवेज क्रिएट्स केओस. सो वो दिमाग में चलता है इनके कि भी अब इसको क्या एकदम से आया है दिमाग में जो ये कीकू से बात कर रहा है, वो भी इस मोमेंट पे जब थिंग्स सही नहीं चल रही हैं रेस्टोरेंट में. तो एकदम से सोचने लग जाती हैं. एकदम से दिमाग उनका वो जाने लग जाता है कि ये है
थिंग। तो एवरी बोलती है कि एमिट से कि कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी देयर टिल द रेस्टोरेंट। सो कहते हैं हाँ ठीक है, आई विल श्योरली आई विल ड्रॉप यू देयर। तो वो जाती है, चीज़ें सॉर्ट आउट करती है। जो फॉक्स होते हैं वो कहीं और जगह पे होते हैं जो कि मैक्स को नहीं मिले होते हैं। एंड मैक्स इज़ ऑल्सो समवेयर लाइक यू नो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुका है बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर टू लॉन्ग, दैट्स व्हाई। एंड बेसिकली वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करती है। जो एक्स कम पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बात करती है किसी से एंड वो अरेंज कराती है एंड एवरीथिंग वेंट्स ऑफ वेल। तो वो सब सही चल रहा होता है, सब कुछ अरेंज हो जाता है। एंड देन मैक्स और जो है भी है वो बैठते हैं साथ में एंड दे नो सी इफ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल फ्रॉम द डिस्टेंस। तो फिर मैक्स को बोलती हैं कोनी ऐसे लगा कि दैट आई थिंक यू शुड गो होम, बहुत लेट हो चुका है, तुम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। ही सेज कि हाँ मैं जाऊँगा, वेट अंटिल रेचल कम्स, मैं फिर जाता हूँ। एंड तभी रेचल आ जाती है एंड बोलती है मैक्स को दैट आई थिंक यू शुड गो होम नाउ। वी नो मैक्स जाता है कि हाँ ठीक है मैं चाहता हूँ। एंड एवरी का एकदम से दिमाग में आता है दैट आई थिंक आई शुड टेक्स्ट नो एमिट। वो अब जो केयरिंग वाला जो पोर्शन है एंड पार्ट होता है एक रिलेशनशिप का, वो स्टार्ट होता है। उसे करना भी है मैसेज, उसे नहीं भी करना है, बट वो करती है, एट द एंड करती है कि क्या मैं आपके यहीं पे डिनर कर सकती हूँ रात में। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम आस्किंग यू आउट। तो उसका तभी एकदम से रिप्लाई आता है अमित का कि हाँ आई विल बी देयर व्हेन यू गेट होम, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, कम बाय रेस्टोरेंट अराउंड 8 के अराउंड आप आ जाना एंड जस्ट पिक मी अप। तो एवरी लिख के भेजती है आई मिस यू। एंड द मोमेंट शी राइट्स दैट text I miss you, she's like I don't know whether I should write it or not, whether I should text him like this and all those, I don't know। वो हेजिटेशन होती है कि मैं ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। शी वॉन्ट्स टू डू दैट बट दोनों होता है कि गट्स चाहिए होते हैं करने के लिए। वो उसके दिमाग में घूम रहा होता है, तभी सामने से भी रिप्लाई आता है मिस यू टू एडम, सी यू एट अराउंड 8 and bye। So seeing this that somewhere if you feelings कभी भी फीलिंग्स लाई नहीं करती हैं, दे नेवर लाई। गेट पे जैसे नॉक हो रहा होता है, होने ही वाला होता है, तो वो एकदम से गेट खोल देती है एवरी एंड शी सॉ दैट एलिजाबेथ इज स्टैंडिंग देयर एंड उनका हाय हेलो होता है। दे नो टॉक कि हाँ बात होती है, क्योंकि बात किस बेस पे होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे इनकी शादी होती है एवरी एंड अमित की। तो वही बात कर रहे होते हैं एंड देन शी एकदम से बात कर रहे होते हैं तो एकदम से नज़र जाती है ऑन दी फिंगर में देखती है कि रिंग नहीं है एंड शी गेट्स वरीड कि मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ रख के कहीं भी, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट इट। एंड उनको समझ में आता है एलिजाबेथ को दैट शी इज़ बिट नर्वस। तो वो बात करती है कि हर कोई होता है, मैं भी हेजिटेट थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थी एज इट्स अ बिग डे, बहुत बड़ा दिन होता है एंड सब लोग देख रहे होते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं एंड वेटिंग अप फॉर मी ऑन माई ड्रेस एंड सी द रॉन्ग मेंस नेम, वो सब चल रहा होता है। एंड फिर वो कहती है कि शुक्र है तुम्हें सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, यू आर बिट कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। शी सेज अच्छा आई डोंट थिंक सो। तो इनके आपस में ये सब बातें हो रही होती हैं देन दे से कि दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ फाइनली। सो एंड शी सेज यस आई लव हिम। वो कहती हैं कि एलिजाबेथ कहती है कि अमित डू लव यू अ लॉट एंड शी सेज कि हाँ आई लव हिम टू। सो बट शी इज़ टेकिंग टाइम फॉर एक कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर आई शुड से, बिकॉज मैंने उस इंसान से कंफर्ट नहीं करा है अभी कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मैंने अमित को ही नहीं बोला दैट आई लव हिम एंड आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बट आई एम नॉट सेइंग इन फ्रंट ऑफ हिम।
समवेयर उसको ना ये चीज़ लगती है। एंड फिर इनकी वही बात होती है कि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, यू विल बी सेलिब्रेटिंग एज अ फैमिली एंड दैट इंक्लूड्स यू नाउ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड विल catch up in the next episode. Till then, take care. Lots of love. Bye.